Jai Hind and welcome friends to this power packed session of research and editorial analysis powered by Growth Mode UPSC. I am Dhruv Jani. Today's research and editorial analysis session will be of a different design because as you can see we have taken two editorials from different newspaper into our consideration. Both are related to the local elections which are happened in Jammu and Kashmir in last few days, and now results are out, so both are dependent on the results of the election. No other information besides election results is been provided in the entire article, so we will consider the content of article in our one of the head of today's session, and we will be studying other researched elements which are important for our exam preparation. If we bifurcate into our associate subject, then it is related to polity and governance, and in polity and governance we can further bifurcate into constitutional practice in the state of Jammu and Kashmir. The importance of today's article is because we will talk about the constitutional practice which happened for the first time after the abrogation of Article 370. Since there was no constitutional practice which happened in the entire state of Jammu and Kashmir, so the entire matter of today's session is very much important. It is important because the Jammu and Kashmir, the state of India, is isolated since our independence. It's actually isolated with our mainstream. Plus, today's content is important because our Jammu and Kashmir state shares international border with our bastard enemy neighbor Pakistan. So there are many kind of issues, there are many kind of matters from which today's session is more important. The election results in Jammu and Kashmir are important. We will see the entire session into four heads. Namely, the first head will be Panchayati Raj structure in Jammu and Kashmir. Second point will be politics in Jammu and Kashmir. Our third point of discussion for today will be election results. And after that we will discuss about way forward. The election results, which is our one of the head, they are described in both of the above article. So we have taken only reference of this article. On the reference of it, we have tried to extract the elements of general studies like Panchayati Raj structure of the entire Jammu Kashmir state, politics in the entire Jammu Kashmir, and along with that we are going to discuss about way forward strategy, that how should the government, how should the center should react. So this will be our today's session. We will start by seeing the images of both the articles which are present or published in today's newspapers. Vocal for Local is from The Hindu and Step to Normalcy is from Times of India. जैसे मैंने बताया आपको कि दोनों में यह जो परिणाम आए हैं, चुनाव के परिणाम आए हैं स्थानिक स्वराज्य के चुनाव के, उसके बारे में ही बात की गई है. उसके अलावा यहाँ हमें कोई जो तथ्य है वो देखने को नहीं मिलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन. जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज स्ट्रक्चर. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो यह समझना है कि पंचायती राज क्या है. यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है. अगर हम लोग स्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कानून के बारे में पढ़ रहे हैं तो यह हमें मालूम होना जरूरी है या हमें मालूम होना चाहिए. देखिए, पंचायती राज जो है वो एक प्रैक्टिस है. किसकी प्रैक्टिस है? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, यानी कि लोकतांत्रिक सत्ता जो है वह सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है
उसको डिसेंट्रलाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हेड के बीच में आप कह लीजिए डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। सत्ता का विभाजन। Our father of nation, महात्मा गांधी was in favor of पंचायती राज सिस्टम, बट जब तक वो जिंदा थे तब तक तो यह पंचायती राज लागू नहीं हुआ था। और जैसे ही मैं मालूम है कि पूरे देश में धीरे धीरे 1963 से यह जो पंचायती राज का जो स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे अलग अलग भागों में लागू होना शुरू हुआ। It started from राजस्थान, then after the entire structure was established in आंध्र प्रदेश। उसके बाद अलग अलग राज्यों में यह फैलना शुरू हुआ, मगर जम्मू एंड कश्मीर जो है वहां नहीं लगा था। और हमें मालूम भी है कि देयर आर मल्टीपल लॉज, इनफैक्ट देयर आर मेनी लॉज विच आर नॉट एप्लीकेबल या विच वर नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, which means before August 5th, 2019 there were multiple laws, there were multiple constitutional provisions which were actually not applicable in the entire state of Jammu and Kashmir. So यहाँ कुछ नहीं हुआ था, मगर पूरे भारत में धीरे धीरे पंचायती राज लगना शुरू हो गया। और हमें मालूम है कि यह पंचायती राज जो है यह 3 टायर सिस्टम है, सत्ता विभाजन की 3 टायर सिस्टम है, जिसमें कोई भी स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग कमेटी रहती है, एक तहसील लेवल यानी कि तालुका लेवल या आप कह लीजिए ब्लॉक लेवल, और एक रहती है विलेज लेवल, जिसमें पंचायत भी आती है, तालुका पंचायत भी आती है और डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी आती है। ठीक है, तो व्हाट वाज पंचायती राज ऑफ 1963, ये हमारा आज का विषय नहीं है, मगर यहाँ एक बैकग्राउंड देना जरूरी है, इसलिए हमने थोड़ा जिक्र यहाँ ब्रीफली कर लिया। तो दिस वाज द एंटायर पंचायती राज and the entire establishment is for democratic decentralization of power, ताकि सेंटर से जो निकली हुई मदद है वो गांव तक पहुंचे, गांव के एक एक मानवी तक पहुंचे। सेंटर या आप कह लीजिए स्टेट, दोनों से जो निकले हुए रिसोर्सेस है वो विलेज और उसके सिटीजन्स तक पहुंचे, ये इसका उद्देश्य है। और इसीलिए यह स्थानिक संस्थाओं में, यह ऑर्गेनाइजेशंस में लोकल रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो इट इज फेवरेबल कि लोकल लोग वहां के लोकल प्रश्न जो है उसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, वे अपने लोकल प्रश्नों को यानी कि स्थानिक प्रश्नों को हल करने के लिए वे तत्पर रहेंगे, जितने तत्पर स्टेट के लोग या सेंटर के लोग नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये एक मोटी मोटी इसकी व्याख्या है और इसके हिसाब से ही किया गया था। और जैसे मैंने बताया कि जो PRI का जो इंस्टीट्यूशन है वो एंटायर लोकल रिप्रेजेंट के ऊपर निर्भर है, यानी कि अगर कोई भी जिला हो तो वो जिला में वहाँ का लोकल रिप्रेजेंटेशन होगा, कोई भी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस हो तो वहाँ वह ब्लॉक के जो स्थानिक लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, और अगर वो पंचायत होगी तो वहाँ पंचायत में भी वहाँ स्थानिक लोगों का ही रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे उद्देश्यों की वजह से यह पंचायती राज को पूरे भारत में लागू करना शुरू किया, मगर जैसे मैंने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी लागू नहीं हुआ था। फिर 1976 में सर्वप्रथम बार यह कोशिश की गई जम्मू कश्मीर के राज्य में डिसेंट्रलाइजेशन करने की, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करने की, और उसके तहत सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन का जो मॉडल है वो अपनाया गया। और ये मॉडल जो था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल था, डिस्ट्रिक्ट लेवल। अभी देखना है पूरे देश में कहाँ कहीं कहीं 2 टायर है, कहीं कहीं 3 टायर है। अधिकांश राज्य जो है वहाँ 3 टायर पूरा जो मैकेनिज्म वो आज मौजूद है, मगर यहाँ शुरुआत जो हुई वो सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन से हुई, यानी कि देयर वाज ओनली डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन, देयर वाज एब्सेंस ऑफ
तहसील लेवल एंड देयर वाज एब्सेंस ऑफ विलेज लेवल 2। और इसको क्यों बनाया गया, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी थी उसके पास से ऐसी आशा रखी गई थी कि स्थानिक जो मुद्दे हैं उसको देखें, स्थानिक विकास जो है उसको देखें इत्यादि एक्सेट्रा। ठीक है, फिर धीरे धीरे वहां जम्मू कश्मीर के पूरे राज्य में लॉबिंग शुरू हो गई कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से पंचायती राज का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए। यह जो सिंगल लैंड एडमिनिस्ट्रेशन है इससे काम नहीं चल रहा है, तो एक मल्टी टायर अब मैकेनिज्म की जरूरत हो गई, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1789 को दाखिल किया गया। जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज 1989 को दाखिल किया गया और उसके तहत 3 टायर मैकेनिज्म दिया गया, जिसके तहत विलेज लेवल पे पंचायत रहेगी, उसके बाद तहसील यानी कि ब्लॉक लेवल रहेगा और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड या काउंसिल रहेगी। ठीक है, तो तब जाके वहां से 1989 से जम्मू कश्मीर में 3 टायर जो मैकेनिज्म है वो लागू हुआ, जो आज अधिकांश भारत में दिख रहा है। देखिए, यह जो पंचायत है, यहाँ ये पंचायत में भी हमें थोड़ा देखना है। यहाँ की पंचायतों को हल्का पंचायत कहा जाता है। हल्का पंचायत हल्का यानी कि वेटलेस या चीप नहीं, मगर इट्स एन अरेबिक वर्ड, और जिसके तहत सर्कल ऑफ पीपल ऐसा, इसके तहत हम लोग अर्थ जो है वो निकाल सकते हैं। तो उसी के मुताबिक हल्का पंचायत का जो स्ट्रक्चर है उसको बहाली दे दी गई, उसको लागू भी कर दिया गया, और ये विलेजेस के लिए रहेगा या ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए रहेगा। या तो एक विलेज होगा या देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, जिसके लिए यह हल्का पंचायत की टर्म मानी गई है। वैसे तो सिंपल पंचायत है, मगर इसके नामकरण में ही थोड़ा जो है हमें विरोधाभास दिखता है पूरे भारत में और जम्मू कश्मीर अकेले में। बाकी इसका जो फंक्शन है वो एकदम सेम है, सेम लाइक अदर इंडियन पंचायत्स या अदर पंचायत्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, जिसके तहत इसे यहाँ का स्थानिक विकास के लिए योजना तैयार करना है, या आप कह लीजिए यह योजनाओं को लागू करवाना है, प्लस स्लाउटर्स जैसे जो व्यवसाय है उसको रेगुलेट करना है, वहाँ के फेयर एंड फेस्टिवल्स जो है वे रेगुलेट करने हैं इत्यादि। तो फंक्शन वो इज सेम, मगर इसका जो नाम है वो अरेबिक भाषा में दिया गया है, इसलिए इसको हल्का पंचायत कहा जाता है। बाकी सेम है, तहसील भी है और तहसील के साथ साथ वहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड भी है या काउंसिल भी है। और ये जो चुनाव हो रहे थे ये आज यहीं हो रहे थे, लोकल लेवल पे ही चुनाव हो रहे थे, तो पंचायती राज के ही चुनाव हम लोग उसे कह सकते हैं। देखिए, तो ये जो पूरा हमने मामला देखा वो वहाँ के पंचायती राज का था। अब अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स में तो सिंपल है, कुछ नहीं है। हाल ही में 6 या 7 पार्टीज है, मैक्सिमम 10 कह लीजिए जो कंसिडरेबल हो। उसमें कई सारी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, फिर आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
कुछ यहाँ ऐसी भी राजनीतिक पार्टी थी पिछले कुछ वर्षों में जो अलगाववाद को प्रोत्साहित करती हो, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को जो है फ्यूल करती हो, मगर पिछले एक दशक में इन पार्टियों का जो प्रभाव था, इन पक्षों का, वो बहुत ही दुर्बल हो गया है। तो इसीलिए हम वहाँ उसका जिक्र नहीं करेंगे। बाकी थी, कई सारी थी। हुर्रियत थी, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट था, JKLF जिसे हम कहते हैं, मगर यहाँ दे वर नॉट मेन स्ट्रीम, तो हम लोग यहाँ उसकी बात नहीं करेंगे। फिर आज जो लोकल लेवल पर जो चुनाव हुआ है और उसके नतीजे सामने आए, उसमें एक गुपकर अलियंस नामक एक टर्म गूंज रही है, जिसको खासा वोट शेयर भी मिला है, मत भी मिले हैं। ठीक है, तो यह गुपकर के बारे में अगर जाने तो इसका फॉर्मेशन जो है वो 20 अक्टूबर 2020 में हुआ। इट वॉज फाउंडेड बाय फारूक अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, और यह गठबंधन है 5 या 6 पार्टियों का, जो प्रादेशिक जम्मू एंड कश्मीर की राजकीय पार्टीज है या रीजनल पार्टीज है, उन लोगों का गठबंधन है। और इन लोगों की जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी एक ही है, रिस्टोर आर्टिकल 370 एंड 35A and restore special status in short. So with this sole objective, this party is formed, the alliance is formed, and this alliance has claimed, I think, 110 seats in the recent elections, which we are talking today, out of 280 seats. So the leaders of this alliance are claiming that this is actually a referendum to restore the special status, to re-invoke Article 370 and 35A in the state, जो कि केंद्र सरकार आज दिन तक ऐसी दलील कर रही है कि जम्मू कश्मीर के आइसोलेशन में, जम्मू कश्मीर के कम विकास में यही जो जोगवाई है या यही प्रावधान है वे बाधित रहे हैं। अदरवाइज जम्मू कश्मीर में भी डेवलपमेंट हुआ होता अगर यह आर्टिकल 370 और 35A पहले से ही नहीं होते तो। मगर कुछ कारणों की वजह से तब हमारे जो नीति निर्माण कारक थे, उन लोगों को लगा कि उस समय उन लोगों को ज़रूरत लगी कि यह स्पेशल स्टेटस इसको देना चाहिए, और उन लोगों ने दिया, जिसके तहत उनका एक अलग सा संविधान था, अलग सा एक वहाँ का एक ध्वज था। राष्ट्र ध्वज तो हम लोग नहीं कर सकते, मगर उन लोगों का अपना राज्य ध्वज था, उन लोगों का अपना एंथम था। तो इट वॉज ऑल पॉसिबल ड्यू टू आर्टिकल 370 एंड 35A, विच सेंट्रल गवर्नमेंट एब्रोगेटेड, या आप कह लीजिए नलिफाइड। ठीक है, तो दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब अगर इलेक्शन रिजल्ट्स की बात करें, जो आज के इस संपादकीय लेखों का जो है मुख्य मुद्दा था, तो उसके मुताबिक जैसे मैंने बताया कि देयर आर 280 सीट्स, आउट ऑफ इट 110 आर विथ गुपकर अलियंस प्लस 75 आर विथ बीजेपी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और कुछ 50 जैसे जो है वे इंडिपेंडेंट है। तो दिस आर द रिजल्ट्स, जिसमें से बीजेपी एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होकर उभरी है। और सच्चा खेल अब यहीं से शुरू होगा। यह जो 50 इंडिपेंडेंट है, दे विल प्ले की रोल इन मेकिंग द लोकल लेवल गवर्नमेंट। वे लोग अगर बीजेपी में चले गए तो जो है बीजेपी जो है भारी बहुमत के साथ वहाँ सत्ता में आ सकती है स्थानिक स्तर पर। और अगर वे गुपकर के साथ चले गए, देन द एलियंस ऑफ दिस पार्टी, गुपकर में जैसे मैंने बताया कि 5-6 पार्टियों का समावेशन है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वही की है सारी रीजनल पार्टीज, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, या आप कह लीजिए PDP है, एक्सेट्रा।
ठीक है, तो ये लोग सत्ता में आ जाएंगे और इन लोगों का तो मुख्य उद्देश्य ही ये था कि फिर से 370 को रिस्टोर कर दे, फिर से स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को रिस्टोर कर दे। ठीक है, तो अब जो खेल है वो यहीं शुरू होगा। बट बियॉन्ड द फिगर्स एंड बियॉन्ड द फैक्ट्स ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी और ये बात समझनी होगी कि कश्मीरी आवाम ने भारतीय संवैधानिक प्रणाली को, भारतीय प्रस्थापित संवैधानिक प्रणाली को माना, उसका आदर किया और भारत के साथ जुड़ने के लिए जो है वे लोग आगे आए, वो ही अपने आप में बड़ी बात है। अदरवाइज दे कैन बॉयकॉट एंटायर इलेक्शन प्रोसेस। वे लोग कर सकते थे, मगर उन लोगों ने सामने जाकर वोट दिए, ऐसे तनावपूर्ण स्थिति में वोट दी है। और जैसे हमें मालूम है कि कश्मीर हैज बीन अ मिलिटरी स्टेट सिंस पास्ट 30 ईयर्स, तो ऐसे अशांत माहौल में उन लोगों ने अपने बाहर निकल के जो लोकतांत्रिक फर्ज थी उन लोगों की, डेमोक्रेटिक आप कह लीजिए ड्यूटी, वो उन लोगों ने अदा की। और अगर हम वोटर टर्नआउट की बात करें तो इट हैज़ बीन सब्सटेंशियल मोर देन 51%, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। यही बात सुनिश्चित करती है कि कश्मीर की आवाम भारत के साथ जुड़े रहना चाहती है, भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है और भारत के अन्य राज्यों के जैसा ही जो है एक स्थान चाहती है या एक सम्मान चाहती है। तो यहाँ से ही क्लियर हो गया, जो सेपरेटिस्ट की जो बातें थी, अलगाववाद की जो बातें थी, ये यहाँ से ही जीरो हो गई। आज तक चल रहा था, मगर ये देख के, पब्लिक रेफरेंडम देख के हम लोग ऐसा निष्कर्ष निकल सकते हैं कि कश्मीर की प्रजा को कहीं नहीं जाना है, उन लोगों को भारत के साथ ही रहना है और भारत के जैसा ही, भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़कर भारत के जैसा ही विकास करना है। तो दिस वाज द इलेक्शन रिजल्ट। और इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि वैली में, कश्मीर जो वैली है उसमें 10 काउंसिल्स है, उसमें से 9 के ऊपर गुपकर विजयी होगा या गुपकर बैठेगा, फिर 5 या 6 काउंसिल के ऊपर बीजेपी रहेगी, जो कि जम्मू रीजन यानी कि पीर पंजाल एंड चिनाब वैली के आसपास का जो रीजन है वहाँ बीजेपी रहेगी और 50 इंडिपेंडेंट जो है वे तय करेंगे आगे का रास्ता। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्शन रिजल्ट। अब अगर वे फॉरवर्ड की बात करें तो पहले तो मैंने आपको बताया कि जो भारत तरफी है सकारात्मक है, तरफी यानी कि सकारात्मक। दूसरा, अब धीरे धीरे केंद्र सरकार को भी नॉर्मलिसी के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। नॉर्मलिसी इन द सेंस इंटरनेट जो रिस्ट्रिक्शंस है वो थोड़े हल्के करने चाहिए, थोड़े मॉडरेट करने चाहिए, जो आज के समय बहुत ही इंटेंस है। फिर सेंटर को जम्मू एंड कश्मीर को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कदम उठाने होंगे, कठोर कदम उठाने होंगे, तभी ही जम्मू कश्मीर जो है वो भारत में पूर्ण रूप से जो है उसका मिलन हो पाएगा। अदरवाइज इट विल बी आइसोलेटेड, इट विल रिमेन आइसोलेटेड एज लाइक इट हैज रिमेन्ड आइसोलेटेड टिल डेट सिंस आवर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये 3-4 मुख्य बातें हैं जिसके ऊपर हमें हमारी जो भावी नीति है वो गढ़नी होगी। और इसमें से जो इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन है वो मुझे लगता है कि यहाँ लेखक ने जिक्र किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया के जो लेखक है उसने जिक्र किया है यहाँ कि इंटरनेट को जो है इंटरनेट के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है उससे ज़ीरो कर देना चाहिए। मगर मेरा निजी मानना ये है, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि ये पर्टिकुलर जो मुद्दा है वो मुद्दा हमें हमारे सुरक्षा बलों के इंटेलिजेंस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर वे क्लीन चिट दे देते हैं तो खोल देना चाहिए, मगर अगर वे इसमें खतरा पाते हैं तो हमें निसंदेह यह नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही भारी मात्रा में इंटरनेट का यूज़ होता है टेररिस्ट आउटफिटों के द्वारा रिक्रूटमेंट के लिए या कम्युनिकेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए। तो मुझे लगता है कि यह मुद्दा जो है वो हमें उन लोगों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वे लोग जैसे हमें सूचित करेंगे वैसे हमारी सरकार को
जो है वहाँ अपना काम जो है वो करना होगा। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ आवर फ्यूचर पॉलिसी अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर। तो हमने इस पूरे लेख में जम्मू एंड कश्मीर की बात की, वहाँ के इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी देखे जो कि एक आज का अग्रम मुद्दा है। उसके बाद हमने जो स्टैटिक पोर्शन था जनरल स्टडीज के एलिमेंट में, उसमें हमने पंचायती राज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देखा जो कि थोड़ा डिफरेंट है। और जैसे हमने देखा कि पहले सिंगल लैंड एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और जाके आज 3 टायर एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है अधिकांश भारत के राज्यों के जैसा। और हमने साथ में ही भावी नीतियां भी देखी कि अब सरकार को आगे क्या करना होगा। तो आई होप कि यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगले लेख के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।